भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 इंटरनेशनल में लॉरा वोल्फार्ट की टीम भारी पड़ी टीम इंडिया पे। हालांकि फासला सिर्फ 12 रनों का था, लेकिन बेहतरीन बैटिंग और उसके बाद एक अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस के दम पे 1-0 की बढ़त। यानी कि अब करना होगा पलटवार हरमनप्रीत कौर की टीम को, जो पहुंच चुकी है एक बार फिर से एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। मैच सेंटर लाइव में आप सभी का स्वागत। इससे पहले कि भारतीय टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप के असाइनमेंट्स के लिए रवाना हो, आज पलटवार करना और सीरीज की बराबरी करना बहुत जरूरी है। सब पे चर्चा करेंगे रीमा मल्होत्रा और वेदा कृष्णमूर्ति के साथ, जो हमेशा की तरह एज ऑलवेज राइट नेक्स्ट टू मी ऑन मैच सेंटर लाइव। रीमा, आपसे शुरुआत करूंगा। अब थोड़ी सी हमने चर्चा की थी कि कैसे ट्रैक रिकॉर्ड चेन्नई पे 4 मैचेस का सैंपल साइज था, अब 5 का हो चुका है। विमेंस टी20 इंटरनेशनल में बैट फर्स्ट और मैच जीतो का थोड़ा सा एक मंत्रा हमने देखा था। क्या इंडिया ने थोड़ी सी ट्रिक मिस की टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का चयन करके? मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए कई बार आप सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेते हैं, लेकिन कई बार आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से रहे थे, कुछ ही रन से हारे थे। मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्टिकल एरर था कि आपको शायद जेमी को नंबर 3 पे भेजने थे। वो अगर ठीक कर लेंगे, फील्डिंग ठीक कर लेंगे, तो शायद रिजल्ट आपके फेवर में चला जाएगा। वेदा, आपके हिसाब से अगर आज फिर से हैरी एके हरमनप्रीत कौर टॉस जीतती हैं तो क्या करें? पहले बल्लेबाजी करने का ट्रेंड फॉलो करें या फिर वही करें जो करती हैं? नो, आई थिंक आज थोड़ी सी बारिश हो रही है तो मुझे लगता है चेस करना बेटर रहेगा। ओके, देखिए वेदा ने जो कहा है ना, उसको सीरियसली मत लीजिएगा। बारिश हुई है दैट इज ट्रू, बट लेकिन थम भी गई है। थोड़ी देर पहले कवर्स थे, वो हटा दिए गए। बट शी इज एब्सोल्युटली राइट कि वो थोड़ी सी ह्यूमिड मॉइस्ट कंडीशंस जरूर हैं चेन्नई में। अब उसका कितना प्रभाव पड़ेगा हरमनप्रीत कौर के प्लान्स को लेके, और ऑल्सो वो 11 कैसी नजर आने वाली है, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि लॉरा वोल्फार्ट और हरमनप्रीत कौर दोनों तैयार है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ऑल इंपॉर्टेंट टॉस ऑफ द कॉइन के लिए। Coming up to toss time here in the second T20 International, still in Chennai. The two captains standing alongside me, Harmanpreet Kaur, Laura Wolfart, and the match referee, G.S. Lakshmi. Harman has the coin. Heads. Heads is a call. It's tails. We're going to ball first. It's tails. Harman, I heard you say that you want to bowl, but we would want to hear it again because there's a loud cheer for you. Yeah, we're going to ball first, looking at the conditions, and that was the only reason we were thinking of bowling. After having seen South Africa come out strong in the first T20I, was it a kind of surprise? And for you to come into the second T20I, how have you prepared? Well, if I talk about overall this series, I don't think they have ever given us anything easily. We really had to work hard. Even for the first game also, we were close. We kept things, till the end. But I think, in the T20 format, it's only about, clicking 2 or 3 players and doing the job done. You must have had a good rest because it was quite a warm day the other day. But in that rest, was there a lot of talk how to come into this game? Yeah, definitely. We had really positive talks. We talk about things we have done really well in the past few months. I think it's only about, that particular day when you're playing and you just want to give your best. Has any injury concerns happened or any forced changes for Indian team? Yeah, Richa is not playing because of her head injury. A place of her Uma is going to debut today. And apart from that, we have 3 changes. We'll manage it. Yeah, don't worry. thank you. All the very best. Thank you so much. Laura, of course, a good win, a good rest, I'm hoping. But how have you come into as a preparation for South Africa into this game? Yeah, obviously back-to-back games, so just had a nice little rest yesterday. Just come back refreshed. Had a few good meetings this morning just to tighten up on some plans, and yeah, hopefully they do well today. A good win the other day, and of course you came very close to a win even in the one-day internationals. But what are the things that has improved for South Africa in the first T20 and that you want to continue here? I think we just showed great intent with the bat. I think obviously to put up 190 after being sent into bat in a ground we haven't really played on before, I think was awesome. Great assessment of conditions early on. Yeah, and I think our bowlers did really well to sort of stretch it out in that middle period and take the game nice and deep. How do you assess the conditions today? Obviously a bit of rain around. I think we would have liked to bowl as well. But obviously batting first last time worked for us, so I think, yeah, it's all right. Any changes in your squad? No, same 11. Have a good game. Thank you. Right. The news from the toss here is that India has won it. They've elected to bowl first. And now, since both the captains have selected their playing 11, it's time for you to get on the Dream 11 app and select yours. बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम चोपड़ा का। और शायद जो हरमनप्रीत कौर और टीम इंडिया की परफॉर्मेंसेज ओवर द इयर्स देखते आए, खासतौर से टॉस पे, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको हैरानी होनी नहीं चाहिए फिर से गेंदबाजी का फैसला। क्या इंटरेस्टिंग चीज जो उसमें नजर आई वो ये थी कि लॉरा वोल्फार्ट ने कहा कि वो भी यही करना चाहती, क्योंकि देयर इज अ बिट ऑफ रेन अराउंड, जैसे उन्होंने कहा। पिछले मैच में भी उन्होंने ये कहा था कि वो बॉलिंग करना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा की तरह मैं कहती हूँ अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, लेकिन स्लाइट एडवांटेज यहाँ पे हैरी को होगा, क्योंकि आपने वेदर को देख के थोड़ा सा रखा है अंडर कवर से विकेट्स थोड़ी देर तक। तो
आप अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, आपने कुछ बदलाव किए हैं और ये मस्ट विन गेम है इंडिया के लिए अगर आपको सीरीज बचानी है तो। आई नो हम आपको प्लेइंग 11 थोड़ी देर में दिखाएंगे, बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि उमा छेत्री, ग्रेट डे फॉर असम, जैसे हम उस दिन कमेंट्री में भी डिस्कस कर रहे थे, उनका डेब्यू होने वाला है आज। I mean, she's come from the ranks ना, वो 23 एमर्जिंग कप खेल के आई है, डोमेस्टिक अच्छा हुआ है। एज अ विकेट कीपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिकॉज एक टीम को सेंटर्ड करके रखना पड़ेगा, जो ऋचा घोष करती है एज अ विकेट कीपर एंड स्पेशली एज अ बैटर, वो इम्पैक्ट ज़्यादा करते थे। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है उसी एक चीज़ की वजह से यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस हम देख रहे हैं, बिकॉज आपको एक बैटर अकोमोडेट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, चाहे वो एक्स्ट्रा बैटर के साथ खेल रहे थे फर्स्ट मैच भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उमा छेत्री के आने से आप थोड़ा सा और वहाँ पे एडवांटेज। शॉर्ट बॉल को ठीक प्रकार से प्रहार, बेहतरीन टच में फ्लॉलेस पारी रही थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर के विरुद्ध भी शानदार शॉट्स लगाए थे पहले T20 आई में स्मृति मानधना ने। आज भी इसी तरह की पारी की उम्मीद होगी। और इसके पहले एक दिवसीय श्रृंखला भारत ने 3-0 से वो श्रृंखला जीत ली थी। पहला मुकाबला 153 रन से, उसके बाद 4 रन से मुकाबला जीता था, और फिर अंतिम वनडे मैच 6 विकेटों से। फिर टेस्ट मैच भी हुआ, वहां पर भी भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। पर यह पहला मौका है, यहाँ पर अभी भी समय है भारत के पास, ये मल्टी फॉर्मेट में पहली बार तीनों फॉर्मेट में श्रृंखला जीतने का। पर पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका जीत चुके हैं। अब देखते हैं कि दूसरा मैच में क्या होता है। कई सारे पॉजिटिव थे यहाँ पे। एक जो टेक अवे था पिछले मैच का, वो थे जिमी की पारी, बीच में आई थी बैटिंग करने के लिए, पर शानदार प्रयास किया था उन्होंने, बेहतरीन टच में नजर आ रही थी। अच्छी बात क्या है कि फील्ड के मुताबिक शॉट्स लगाए थे, और ऐसा लग रहा था कि वो मैच जिता सकती हैं अपनी टीम के लिए। अंत में वो मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया था 53 रन सिर्फ 30 गेंदों में, शानदार स्ट्राइक रेट के साथ हर एक दिशा में शॉट्स लगाए। सबसे अच्छी बात रही उसमें एक छक्का भी शामिल है, और उसके साथ साथ वो इनसाइड आउट शॉट्स जो खेले थे, बेहतरीन फुटवर्क, स्टेप आउट करके वो मोमेंटम लाने का प्रयास, फिर स्पेस क्रिएट करने की कोशिश, और सफलता भी मिली। फिर स्वीप शॉट, स्क्वायर द विकेट। अच्छा ये लगता है कि अब जो स्कोरिंग पैटर्न है, जो स्कोरिंग शॉट्स हैं, उसमें और इजाफा किया है जमी ने। आज का सरफेस अभी भी ड्राई सरफेस है, हालांकि कवर्स में था ये विकेट। हो सकता है थोड़ा बहुत मॉइस्चर इस विकेट में नजर आए, मे भी पहले नई गेंद के साथ थोड़ा विकेट टैकी खेले। टॉस हो चुका है, हरमनप्रीत कौर होम कैप्टन, कॉइन उछाला था उन्होंने और पहले फिर से गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। हरमनप्रीत कौर ने दूसरा ये T20 है, इसमें भी कहा है दक्षिण अफ्रीका को। रीमा मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है, आपका स्वागत है रीमा। शुक्रिया सबा। दक्षिण अफ्रीका के प्लेइंग 11 पे नजर डाले, कोई बदलाव नहीं है, और सही कहते हैं जब कोई चीज़ टूटी नहीं है उसको जोड़ना क्यों। ब्रिट्स ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, काप ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। आज बहुत कुछ निर्भर करता है कि जैसे उनके कैप्टन लारा वुलवार्ड वुमेन्स टीम में डेब्यू किया है, और इनका नाम एशिया कप की टीम में भी है। 2 कीपर्स के साथ भारतीय टीम अब ट्रैवल कर रही है हर एक मैच में, T20 में भी। देखिए यास्तिका भाटिया ना नी सर्जरी के कारण बाहर है। आमतौर पे आप दूसरा विकेट कीपर उनको देखते हैं, लेकिन जब एक नॉन प्लेयर, एक एस्टैब्लिश प्लेयर मिस करता है इंजरी के कारण, तो एक युवा खिलाड़ी के पास मौका होता है। केवल 21 साल की है, छोटी उम्र में अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं यानी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 2 अर्धशतक T20 करियर में ऑलरेडी लगा चुकी हैं। युवा खिलाड़ी हैं, बहुत फुर्तीली हैं, अच्छी विकेट कीपर है और अच्छी बल्लेबाज भी हैं। इंग्लैंड जब आई थी और तब इंग्लैंड ए साइड में, इंडिया ए साइड में थी, वहाँ पे इनका अच्छा प्रदर्शन रहा था। टॉप ऑर्डर बैट है असम के लिए, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी भी करती है, लेकिन सबसे अच्छा नज़ारा दर्शक मैदान पे पहुँच चुके हैं। बारिश थी या नहीं थी, तभी भी वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने पहुँचे हैं फैंस वहाँ पे। डिले हुआ है थोड़ा, बारिश के चलते थोड़ी बौछारें हुई हैं, जिसकी वजह से आपको विकेट में कवर नज़र आ रहा है, लेकिन फैंस के चेहरे पे खुशी और उम्मीद है कि ये मैच जल्दी शुरू होगा। दर्शक पहले मैच में भी मौजूद थे, और आज भी काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, वो आज मैदान में आए हुए हैं। और यही तो खूबसूरती है इस मैदान की, और खूबसूरती है चेन्नई के क्राउड की। ये देखकर अच्छा लग रहा है। WPL में भी हमने देखा था, जहाँ जहाँ मैचेस हुए थे वहाँ पर ढेर सारे दर्शक आए थे मैच को देखने के लिए, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भी
कुछ उसी तरह का समर्थन प्लेयर्स को मिल रहा है यहाँ पे। तो पहले मैच में वहाँ की तस्वीर कुछ अलग किस्म की थी। विद द बैट ब्रेट्स, इनको आप ज़्यादा देर पिक्चर से दूर रख नहीं सकते। 50वीं इनिंग और 1200 से ऊपर रन। पिछले मैच में एक 81 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी। गेंदबाजी की शुरुआत आज करेंगी पूजा वास्तुकर। रेणुका सिंह ठाकुर है नहीं, लेकिन उनके पास मौका। पिछले मैच अच्छा गया था, पिछले मैच में पहले 3 ओवर बढ़िया गए थे। अब आज इन पे बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि पेस बॉलिंग में आज इनको कमान संभाली है। पहला ओवर डालेंगी इस पारी का। एक स्लिप यहाँ मौजूद, फिर से थोड़ी छोटी गेंद डाली। रन मिलेंगे यहाँ पर, खाता खुल गया है। पहले गेंद पर 2 रन। लेंथ तो पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह की रही थी, पर लाइन वहाँ पर काफ़ी अच्छी डाली थी। पहले मैच में दूसरा ओवर डाला था पूजा वास्त्रकर ने, और पहली 6 गेंदों में एक भी रन बनने दिया नहीं था। 6 की 6 डॉट डिलीवरीज थी वहाँ पर, वो भी ब्रिट्स के खिलाफ। यहाँ पे वो उछाल देखने को मिला और गेंद थोड़ा सा ना रुक के आया है, क्योंकि बारिश हुई है, इसलिए शुरुआत में फ़ायदा उठाने का सबसे बड़ा मौका है पेसर के पास। बैकफुट पे आके पंच किया, अच्छी फील्डिंग। आज तो मैं इम्प्रूवमेंट देखना चाह रहा हूँ रीमा, तो कैचिंग में। आउट फील्डिंग और कैचिंग में भी फ़र्क होता है। उसके लिए आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, एक बार जब गेंद ऊपर जाती है मैच में ना, तब तो आपकी धड़कनें थोड़ी बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो वहाँ पर नर्व्स को काम करके कैच पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पिछले मैच में जीत और हार में वही अंतर था, जो 4 कैचेस छोड़ी थी भारत ने। ये अच्छी लेंथ है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर राधा यादव द्वारा। रन चुराने की सोच है, चुरा लिया। और इसी तरह के जो एफर्ट है ना, आप देखना चाहते हैं, शुरुआत से ही प्रेशर क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपकी गेंदबाजी ना आपकी फील्डिंग से और बेहतर नज़र आती है। अगर आप अच्छी फील्डिंग करते हैं तो आपकी गेंदबाजी अपने आप अच्छी नज़र आती है। और वही करना होगा यहाँ पे भारत के फील्डर को, अपने गेंदबाजों को देना होगा साथ, इस तरह से जैसे राधा यादव ने यहाँ पे वो कोशिश करी। वो रिप्ले में आपको लग रहा है कि आसान है, लेकिन रियल टाइम में इतना आसान होता नहीं है। बॉल बहुत जल्दी ट्रैवल करता है सब। थोड़ा आउटफील्ड भी तो कुछ हद तक वेट हो गया होगा, पर ये जो शॉट लगाया था उसमें गति मिल गई थी, ऐसा लग नहीं रहा है। यही लेंथ डाली थी पहले मैच में भी, खास करके ब्रिट्स के लिए पूजा वास्त्रकर ने। लेग साइड पे खेलना पसंद करते हैं, तो जितना उनको आप ऑफ साइड के करीब रखेंगे ना, उतना बेहतर होगा। कोई बदलाव आज दक्षिण अफ्रीका ने किया नहीं है, सेम टीम के साथ गई है, क्योंकि पिछला मुकाबला जीती है। पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो टॉप 5 पे आपको ध्यान देना होगा किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। ट्रायन ने पिछले मैच में छोटी नहीं खेली थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट वो 12 रन बनाए थे। डिक्लर्क के पास बल्लेबाजी है, बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन आप कोशिश करेंगे पहले 4-5 जो बल्लेबाज है ना, वो अपना रन मिल गया रन आसानी से, वो भी ऑन साइड में खेला था। अब दोनों मिड ऑन मिड ऑफ अगर आप ऊपर रख रहे हैं, तो फिर आपको यही लेंथ डालनी होगी। ये प्रिवेंट करता है बैटर को सीधा खेलने से, ऊपर मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से। उमा छेत्री को मौका मिला है आज, पर अभी भी वो पीछे ही खड़ी हुई हैं। जैसे ही आपको लगता है कि बैटर ट्राई करेगा स्टेप आउट करने के लिए, कीपर आ सकता है आगे। 4 चेंजेस आज इस टीम में। अंतिम गेंद पर अरुंधति रेड्डी वहां पर काफी एरिया कवर किया, पर 2 रन और मिल गया। पहला ओवर हो गया है समाप्त, 6 रन आ गए इसमें। सिर्फ प्रॉन से शांत नहीं होगी इस